जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 570th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today we will discuss the global markets. We will discuss the roadmap ahead for Nifty, Bank Nifty, why we have gone short on the market again today, and we will discuss one weekly chart of Nifty. And towards the end of the session, we will take all your stock queries. So सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय माता दी. ओके दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आफ्टर दिस सेशन, बिकॉज चैनल को सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो आजकल जो है बहुत सारे अदर चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो राइवल चैनल्स को ये कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, फेक कॉपीराइट क्लेम करते हैं, एंड दीज आर ऑल लूप होल्स ऑफ यूट्यूब. एंड बिकॉज ऑफ दैट the smaller channel like us, we face a lot of difficulty. So if you wish to see our channel remain on YouTube in further, then kindly comment, like, share, subscribe करना ना भूलें. और जिनको भी अगली ट्रेनिंग में ज्वाइन होना है, विच इज़ scheduled on May 8th and May 29th, this is your last opportunity to learn from us. And after this, I'm not going to take any training, and you can join ASAP. And the live sessions will also only for group members, sometime in future. Okay, let us see the global markets. So right now, all the markets are in trading in green. You have the S&P 500 which is firmly moving higher. एंड इस चीज़ को जो हमने डिस्कस किया था अभी 3 दिन पहले कि आई थिंक S&P 500 more or less has made a bottom over here, and some bounce should come, and post which we will see where to short this market again. So प्रिसाइसली वही चीज़ इस समय हमें देखने को मिल रही है. हमने पहले एक 3922 का लेवल दिया था S&P 500 में. हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कैसे 4000 के साइकोलॉजिकल लेवल को यूएस मार्केट एक बार ब्रेक करना चाहिए, एंड देन it should start to rally. Now, what I feel is just like this bottom which was made in early March or late February, after this brief rally, I think there will be a test, a double bottom test, and which I think should happen in the S&P 500 in the next 24 hours. यानी या तो कल के दिन हो सकता है इस तरीके का एक डाउन मूव, या फिर परसों. So either tomorrow or day after tomorrow, we are going to see one crack in the S&P 500. जहाँ तक मुझे लगता है जो previous ये support था, that should act as a immediate resistance, which means 4151 is your next shorting area. Now 4151 is going to be the shorting area for S&P 500 for once again a down move towards, I think, 3900 bare minimum. Maybe it can do 3850 and make a double bottom structure like this, post which it should definitely bounce back इन अ स्ट्रॉन्गर फैशन. तो ये एक व्यू मुझे इस समय नज़र आ रहा है यूएस मार्केट में. नैस्डैक की बात करें तो लगभग 12500 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है. नैस्डैक जो है एक अच्छी कमबैक कर रहा है, और नैस्डैक पे मैंने आपको बताया है कि 11600 से लेके 12800 या 13000 के रेंज में चलेगा. नैस्डैक का चार्ट अगर हम देखें तो वी कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल flip zone over here which was flushed in the last week, and we are staging a comeback rally that should meet the resistance right across this supply area of 12,900, 13,000 psychological barrier. So ये markets अभी फिलहाल एक stable हैं, bullish bias के साथ trade कर रहे हैं, and tomorrow or day after tomorrow some sort of selling should again come back. The good thing about today's market is the emerging market ETF has moved up very nicely, almost 2% higher है, and the ACWI is also up by 1.5%. So there is bullishness all around us, और ये जो है एक अच्छी बात है, because we have seen the bearish move outplaying since so many weeks now. So a brief bounce, a brief rally is very much needed for the betterment of both bulls and bears. I think that is very healthy going forward, क्योंकि जब एक तरफा कोई भी move होता है तो it becomes very difficult to trade the market also. So these are the updates. Equity market में आज bullishness है, and let us see tomorrow and day after tomorrow what happens. Now let's talk about the talk of town today, which is US dollar. So US dollar is down by almost 0.5%, and after so many days we are seeing the US dollar finally taking some beating, finally retracing
giving up the gains, and this is going hand in hand with the equity market rally. So आप देख सकते हैं कि कितना प्रिसाइज एक कोरिलेशन के साथ जो है ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इस समय काम करते हैं. यूएस डॉलर peaking out here, and the equity markets, they are pushing higher. So very nice intermarket correlation. This is a very fine example, and the budding technical analyst, the budding trader should make a note of all these observations, because that will help them in future. Now if we look from a weekly chart perspective, then yes, this is a trouble area for the US dollar. It is not sustaining above the magical fib number which we teach in the training, and so far yes, there is some pressure. Okay, however, if we look at the daily chart, from a trend perspective, we need to take down this bottom. This is the Fed rate hike bottom. So this is quite crucial. So till this is not taken out, we cannot say from a trend perspective का मतलब है कि एक मीडियम टर्म में जो एक ट्रेंड होता है, बायस होता है, उसके हिसाब से in the short term things can go down, things can go up, things can go down, they can move in this range bound to zigzag fashion. But from a trend perspective, a sustainable perspective, we need to take down this level. Unless we do this, it will only make the US dollar stronger. So US dollar, just like USD JPY, can come down, but it can again go up. We need to take down this bottom from a ट्रेंड परस्पेक्टिव. अगर हम यूरो की बात करें और ब्रिटिश पाउंड की बात करें, तो आज जो है दोनों ने कमाल की रैली की है. व्हाट अ फैंटास्टिक रैली, एंड वी हैव बीन मेंटेनिंग द बुलिश बायस स्पेशली ऑन जीबीपी आईएनआर. मैंने आपको वीकली सेशन में भी बताया था कि इस वीक के लिए इट इज़ द प्रिफर्ड वन. एंड लास्ट वीक जो है जीबीपी आईएनआर ने दो बार 94.5 लेवल के आसपास जो है एक इंट्राडे स्लंप लगाया था. स्पेशली आई थिंक लास्ट वीक इट केम फॉर द सेकेंड टाइम, एंड यहाँ पे हमने जो है एग्रेसिव बाइंग की एडवाइस दी थी. सो बैक टू बैक इट केम नियर दीज लेवल्स, एंड the first time when it came, that time also we shot up very nicely for more than 1 rupees. That time also we had suggested a buy, and last time it was a super high conviction buy. And today, if you see the GBP INR pair, it has staged one of its highest bullish move. ओके, सो जीबीपी आईएनआर जो है अपने हिस्ट्री में, रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अप मूव जो है आज उसने स्टेज किया है. सो इट वाज अ ग्रेट मूव इन द जीबीपी आईएनआर एंड आल्सो in the euro INR pair. So you can see the spot euro chart over here. ये breakdown था spot euro में, and this met the support zone on the pitchfork, and now we have bounced back. So very good rally in the euro INR और GBP INR. So हमने जो है profits हमने तो बुक कर लिया है, एंड अगेन हम डिप्स पे बाय करेंगे. सो जो मैंने आपको एनएससी फॉरेक्स फ्यूचर के जो लेवल्स बताए हैं, चाहे वो यूएसडी आईएनआर हो, ब्रिटिश पाउंड हो, यूरो हो या जेपीवाई हो, उन पे वही लेवल्स जो है काम करने वाले हैं. आई डोंट थिंक द लेवल्स आर गोइंग टू चेंज. नाउ वन currency that I would like to talk is about the USD INR. So today USD INR has made almost a new high, a slight new high I would say, and it reversed. So now I am no more bullish on USD INR from a few days perspective. मुझे लगता है कि we have made some sort of a top over here, and unless we see 78 crossing, I will not be very bullish. So that doesn't mean I'm bearish, but I think there will be a range bound activity again. So I think there will be a range where 78 becomes a very hard line resistance, and on the lower side I think you will see 76.8 or maybe 76.5. Okay, so I think USD INR, just like the previous times, I think it has met resistance, and it's time for some correction. This time it may not give a deeper correction. That will depend on various things, but yes, at least a pullback towards 76 and a half is very much likely to happen. So we will see one more leg coming here, and that is where probably again one support, probably it will start to move higher again. So things will become very dicey for the USD INR, because as I've been telling you that it is making a very strong coiling pattern, and whenever we see these things happening, they almost every time, almost 90% of the time, they break higher, they break on the higher side. So the more the compression, the bigger the expansion. That is the logic that works in market.
So you can see for yourself, the every cycle is getting coiled, it is getting compressed. So just a matter of time when USD INR breaks through the 78 rupees and starts to fly towards 85, 88, 90, god knows where it will go. So ये एक व्यू है शॉर्ट टर्म में, थोड़ा सा बेरिश, थोड़ा सा एक करेक्शन फ्रॉम 78 टू 76 एंड हाफ, 77, 76.8 ये लेवल्स पे। एंड अगेन हम इसमें जो है बाय करेंगे फॉर फर्दर हायर टारगेट्स नेक्स्ट टाइम। सपोज अगर ये डायरेक्टली एक दो दिन में वापस से 78 अगर ब्रेक करता है, वी विल गो ऑल इन द यूएसडी आईएनआर। सो हम उस समय जो है फुल बुलिश हो जाएंगे यूएसडी आईएनआर पे, and probably we will go with huge quantities also, because I think that at that time uh, it will not stop at least till 80, 81 level। तो हम दोनों साइड का एक व्यू जो है ना ओपन लेके चलेंगे। ये एक व्यू है यूएसडी एनआर पे। नाउ लेट मी क्विकली गेट अ रीकैप ऑन दी यूएसडी जेपीवाई। सो जेपनीज येन जो है इंट्राडे सेशन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट आई थिंक अगेन इट विल बी सोल्ड ऑफ। बहुत ही अच्छा एक डबल टॉप यहाँ बना है, एंड रिसेंटली वी हैव गॉट अ वेरी नाइस ब्रेक डाउन। सो ये अभी एक और कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड आई थिंक इट विल ब्रेक अगेन। सो even in best cases it can make a range like this, so even in that case one down move is pending। So having said that, जो JPY INR पेयर है उसमें कोई भी डाउन मूव आता है 59.5 तक, 59.2 तक, तो इसे बिंदास बाय करना चाहिए। और जो recent बॉटम बना है 58.5, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी टेकन आउट इन एनी circumstances unless this doesn't start to shoot up, and that I don't see happening at least for the next few weeks। So any down move 59.5, 59.2 is a buying opportunity, डेफिनेटली बाय करना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। और इमीडिएट पहला टारगेट है 61.2 का। 61.2 जिस समय क्रॉस हो गया तो आप समझ जाना कि फिर ये 63 तक या 63.25 तक ये नहीं रुकेगा, एंड दैट वुड मीन दैट देयर विल बी अ बिगर करेक्शन इन द यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, सो ये एक क्विक रिकैप है हमारे चारों पेयर्स के ऊपर। यूरो और ब्रिटिश पाउंड पे हम आउट हैं, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, नीचे की गिरावट आएगी तो हम उसे बाय करेंगे, अभी नहीं बाय करेंगे। ठीक है, नाउ just for from a chart perspective, this is how the British pound looks, back to back green candles, and we had a very nice bullish engulfing over here। So fantastic move in the British pound। Now what's happening with the Chinese yuan? Chinese yuan में क्या हालचाल है, तो एक बार हम इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, कि चाइना क्या कर रहा है। तो चाइना जो है अपने करेंसी को बहुत शानदार तरीके से मैनिपुलेट कर रहा था ऑल दिस वाइल, and the Chinese yuan has faced a resistance over here। So it bottomed somewhere, in the month of late Feb, early March, and then we have seen a huge move in the Chinese yuan। Now this move in the Chinese yuan coincided with the easy monetary policy in the Japanese yen। तो आप समझ सकते हो कि पूरा जो ये चक्कर है, ये यूएस, चाइना और ये जापान, ये तीनों आपस में जो है गेम खेल रहे हैं, जिसमें से यूएस और चाइना साथ में, सॉरी यूएस और जापान जो है ये दोनों साथ में हैं। एंड द एंटायर रैली इन द यूएसडी जेपीवाई वाज नथिंग बट अ रिस्पांस विद द रिस्पांस टू द चाइनीज इंटरेस्ट रेट। सो आई थिंक ये हैंड इन हैंड चल रहा है। सो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड आई थिंक दिस ऑल्सो शुड ड्रॉप, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देख सकते हैं कि मेटल्स में, यानी आज आप देखेंगे तो आपको जो मेटल्स हैं ये थोड़े से एक बुलिश हमें दिखाई दे रहे हैं। रीसेंट बॉटम से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है कॉपर में, एल्यूमिनियम में, जिंक में, लेड में। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कमोडिटीज मार्केट। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की बात करते हैं कि कल रात को इफ़ यू रिमेंबर वी डिड दी लाइव एनालिसिस, और उस लाइव स्ट्रीम में जो है मैंने आपको एक लॉन्ग ट्रेड इसमें दिया था नेचुरल गैस में, और 595 से 600 के दरमियान जो है इसे बाय करने को कहा था, और क्लोजिंग अगर 615 हिट करता है तो कैरी करना चाहिए, ये भी कहा था मैंने। एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड द रीज़न व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। इट वाज अ बिट एग्रेसिव ट्रेड बट हमने लिया and we got rewarded, and today you can see from 600 to 640, that is a 40 point move in the natural gas, and that too सारी move जो है overnight हुई है। So once again this is a fantastic top notch analysis that has worked। So recently we were talking about the bullishness in the natural gas market। तो पहले हमने यहाँ पे एक शॉर्ट करवाया था, हमने ऑप्शंस के थ्रू इसे ट्रेड किया था, नॉट फ्यूचर्स।
सो यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट हुआ था, एंड देयर आफ्टर वी वेंट लॉन्ग, और ये लॉन्ग जो है 550 के लेवल से 650 की हमारी बात हुई थी, तो 100 पॉइंट की ये जो मूव मैंने प्रिडिक्ट किया था, ये चीज़ हो चुका है. नाउ हियर at 650, 660, I would like to see some weakness, a sign of weakness, and probably then, only then, हम इसे जो है शॉर्ट करेंगे और ऊपर के किसी लेवल को एज अ स्टॉप लॉस यूज करेंगे, एंड वी विल अगेन टारगेट दी 520 540 लेवल एज अ डाउन साइड टारगेट. ठीक है, तो ये व्यू है. अभी अभी हमारे लॉन्ग्स जो है इसमें से आउट हो चुके हैं, एंड ऑन एनी साइन ऑफ वीकनेस, ऑन एनी साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसे शॉर्ट करेंगे. बिना उसके शॉर्ट नहीं करना है. ठीक है, सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन कमिंग इन द नेचुरल गैस मार्केट. जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो है ये सारी ट्रेड्स और सारे आइडियाज़ हम रियल टाइम शेयर करते हैं. अगर ग्रुप मेंबर्स आप अग्री करते हो मेरी बात से तो ठोको ताली, नहीं तो लॉग ऑफ करके चले जाओ. ओके, जोक्स अपार्ट, हम बात करते हैं क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल में आज एक और बहुत ही शानदार ट्रेड देखने को मिला है. कैसे मिला है? देखो, क्रूड ऑयल में कल एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लॉन्ग ट्रेड हमने करवाया. ठीक है, सारे ग्रुप मेंबर्स जो है चांदी चांदी हो गए. अब क्या सीन था कि क्रूड ऑयल हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 8900, और हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपायरी मूव है दैट शुड हैपन इन द क्रूड ऑयल. वाई? बिकॉज नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अंडर बैकवर्डेशन. उसके वजह से क्या होगा, क्योंकि क्रूड ने एक डबल टॉप बनाया है और अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है डीप डिस्काउंट में है, ये 100% ना इसे ना ये ट्रिगर करेगा ऑन दी हायर साइड, और वही चीज़ एग्जैक्टली हुआ है. ठीक है, वही चीज़ हुआ है. एंड यू सी yesterday there was a fantastic move. There was a fantastic move जिसमें से जिसने 200 पॉइंट कमाया, किसी ने 300 कमाया, किसी ने कुछ नहीं कमाया. ठीक है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जो है ट्रेड को एंजॉय किया. नाउ द थिंग इज कि जो WTI क्रूड है आपका, ठीक है, वो आ चुका है $116 के आसपास. और इफ़ यू रिमेंबर, तो एक बहुत पहले जो एक हमने डिस्कशन किया था, like that time it was trading near 125 and those levels, फर्स्ट राउंड की बात है. तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्रूड का एक मीडियम टर्म रेंज बनेगा $92 से लेके लगभग $116 के दरमियान. ये एक फ्रेश एक ट्रेडिंग रेंज बनेगा फॉर नेक्स्ट मैनी वीक्स. And if we go and see, more or less, crude stabilized near $90, and it used to take resistance near this, $108 kind of, uh, and now we have reached this level. तो इस पे आज हमने शॉर्ट ट्रेड इसलिए दिया दोस्तों, क्योंकि एक तो ये WTI के हिसाब से एक रेजिस्टेंस पे था, नंबर दैट इज नंबर वन. सेकंड, ये एक एक स्विंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, नंबर टू. एंड नंबर थ्री, MCX पे ये पूरे डिक्लाइन का, दिस इज द गोल्डन रेशियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट विच इज 8910. नाउ इंटरेस्टिंगली कल का जो हाई है वो भी है 8910. तो इन सारी बातों को अगर आप कंबाइन करते हो, यानी एक्सपायरी का पंप, ठीक है, WTI का $116 का वहाँ का रेजिस्टेंस, हमारा USD INR, अगर आप USD INR के चार्ट को देखोगे, रिसेंटली जो स्विंग्स हुए हैं ये एकदम क्रूड ऑयल की तरह चल रहे हैं, राइट. तो क्योंकि हमारा USD INR 78 पे था, so that has brought the MCX crude oil at a higher level as compared to the WTI. So it means that अगर WTI में तेजी नहीं हुई, WTI में थोड़ा भी फेलियर हुआ, तो हमें यहाँ पे कम से कम 200-300 पॉइंट तो मिल ही जाएगा. दैट वाज द लॉजिक. ठीक है, दैट वाज द लॉजिक. तो ये पूरा जो है ना, आप समझ सकते हो कि ये कोई लाइक ये कोई 2 मिनट की एनालिसिस नहीं है. इट्स अ वेरी वेल थॉट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. एंड व्हाट हैपेंड इज, पेशेंटली अगर हम सुबह से वेट करें, मैंने हमेशा बोला है कि MCX की ट्रेडिंग 12 साढ़े 12 बजे तक देखना भी नहीं चाहिए. लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 12:30 डोंट वॉच MCX, कोई सेंस नहीं है. हाँ, अगर ओवरनाइट पोजीशन है तो अलग बात है, उसको आप केटर करिए, बट फ्रेश ट्रेड मत लीजिए. Now look at the intraday chart of WTI, sorry, the MCX. So this was yesterday's high, I think, or maybe, yeah, this was, I think, yesterday's high, 8910, right? And we opened slightly gap down, so that was the first sign of weakness, followed by sideways. And then if you see, there was one attempt to cross the yesterday's high that got a huge selling bar over here, and then there was one more attempt, even that got a beating. So आप देख सकते हो
कि it did not sustain above the previous day high in the Asian session, late European session and the early अमेरिकन सेशन. सो तीनों टाइम जोन में जो ऐसे बीटिंग मिला है, दैट मीन्स दैट इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं ये फिलहाल तो इसे 116 के ऊपर नहीं देख रहे हैं. सो लेट्स ट्राई टू शॉर्ट एंड दिस इज द लॉजिक. तो हमने जो है 8920 पे शॉर्ट दिया और स्टॉप लॉस वो हमने ग्रुप को बताया है. एंड देन वी सॉ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 180 पॉइंट स्लम्प. तो किसी ने यहाँ बुक किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, कोई होल्ड कर रहा होगा. द ट्रेड इज स्टिल running. So you can draw this 5-minute chart and you can play this channel. You can keep shorting on every pullback and keep churning the trades. ठीक है. So ये एक डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लाइव सेशन में कुछ सीख भी सको कि क्या लॉजिक होती हैं, क्या टेक्निकल्स होते हैं, कैसे हाइयर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में आप जो है ट्रेड कर सकते हो. एंड दैट इज ऑल, दैट्स व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट. टू रीड दिस स्टोरी ऑन अ हाइयर टाइम फ्रेम, plan your trades on a lower time frame and execute them properly. Okay, sometimes you win, sometimes you lose. That's how the game is designed. चलिए, सो ये हो गई आपकी क्रूड की कहानी. बात करते हैं गोल्ड. So even gold में there was a fantastic trade, but I was busy in chatting with somebody regarding the Adani and the all those things. So ये ट्रेड मैं तो मिस हो गया, बट कुछ लोगों ने लिया था. सो ट्रेड बड़ा ही सिंपल था कि 50,600 के आसपास पे. आई थिंक ये मैं पहले भी बता चुका था कि एनी पुल बैक दैट कम्स आप इसे शॉर्ट कर सकते हो. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 49,600 अगेन. एंड इफ दैट इज टेकन आउट तो फिर और भी फर्दर स्लम्प आएगा. और जिन्होंने भी आज गोल्ड को शॉर्ट किया है, यू आर गेटिंग सम प्रॉफिट. अगर गोल्ड 50,000 के नज़दीक क्लोज करता है तो यू कैन कैरी. थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा रिस्क है, बट आप कैरी कर सकते हैं. घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है. 51,000 जो है इट इज़ अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस राइट नाउ. सो इवन इफ टुमारो इट गोज अप यू कैन स्टिल हैव सम कुशन. it is not going to do any runaway rally or something like that. So इसमें जो है एक अच्छा ट्रेड वापस से मिल सकता है. लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट कराया था एंड वी सॉ वेरी नाइस डिक्लाइन. सो गुड गेन्स कमिंग इन द MCX मार्केट एंड फैंटास्टिक. चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है? इथेरियम trading near 2065, doing nothing, sideways, and I think it is going to break down in future. ठीक है. सो इथेरियम बिटकॉइन पे मेरा सेम व्यू है जो कल हमने बात किया था. एंड आई थिंक इनमें अभी भी बॉटम नहीं है. प्रॉब्ली दे विल क्रिएट सम फ्लैश और समथिंग लाइक दैट. एंड कल रात को जो है, कल रात से अगले 24 घंटे क्रिप्टो के लिए काफ़ी क्रूशियल होंगे. सो विच मीन्स दैट 18th नाइट or you can say 18th 8 p.m. onwards till 19th late night, ये जो 24 to like 36 hours window है, that is very crucial for the cryptocurrency market. So it will be very interesting to see कि यहाँ पे कितना एक रोलर कोस्टर मूव होता है, एंड हम इसे वॉच करेंगे. So that's all. Let's move towards the Nifty and Bank Nifty markets. और लाइक शेयर सब्सक्राइब इस समय जो है चलते रहना चाहिए. तो सबसे पहले एक हम टॉपिक को कवर करेंगे आज. मैंने आपको थोड़े दिन पहले दोस्तों एक चीज़ बताया था कि देयर इज़ वन ऑब्जर्वेशन विच आई डिड ऑन द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी स्पॉट, एंड इसे जो है आपके साथ शेयर करना था, बट आई हैड केप्ट इट फॉर लेटर ऑन. और पिछले एक हफ्ते पहले मैंने आपको इसका जिक्र किया था, बट उसको डिस्कस नहीं किया था. तो आज आई थिंक टुडे is the correct day to discuss this thing. Now, what is this thing? So if you look, this is the weekly long-term chart of Nifty, and थोड़ा सा ये हॉच पॉच आपको दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस चार्ट पे. बट इफ़ यू लुक केयरफुली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस येलो लाइन, टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर येलो लाइन. आई वुड मेक दिस लिटिल थिक सो दैट आप इसे जो है अच्छे से देख सकें. इसे येलो लाइन जो है, इसे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक वीकली चार्ट है लॉन्ग टर्म. नाउ व्हाई आई एम शोइंग दिस चार्ट टुडे इज बिकॉज this is the 65 weekly moving average, and which I have taught in training to all the students the significance of 65 moving average. Now if you look at all the previous bear and bull market cycle, you will see that this particular
65 week moving average. It shows us a story. Okay, and what is that story? तो इसमें ये होता है कि जब भी अगर वीकली बेसिस पे हम 65 वीक के नीचे अगर क्लोज देते हैं, सो वी टेंड टू कंसोलिडेट फॉर फ्यू वीक्स. ओके, and then if the bull market is still intact, it bounces off, takes the support, and then the bull market continues and market goes on to make a new high. Upon that, again the corrective leg happens, इसके नीचे close करता है, it goes sideways for few weeks, then it comes above again, resumes the bull market, again makes a new high, and the cycle keeps on going. While it has entered in a fresh new bull market after this, जैसे ये bear market हो गया, now it has bounced back again, it has reclaimed. So while it has come back again in the fresh bull market, it will continue to appreciate वगैरह. और जब corrective leg शुरू होगा, correction शुरू होगा, bearish market, तो ये यही बिहेवियर करता है. लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे, बट वी डिड नॉट क्लोज बिलो द 65 वीकली मूविंग एवरेज, बट दिस टाइम वी हैव क्लोज्ड बिलो दैट. सो दिस इज द रीजन वाई लास्ट वीक मैं आपसे कह रहा था कि आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू गाइज, एक एनालिसिस जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. सो इफ हिस्ट्री इज टू रिपीट, if history, which is this, which is this, which is this, okay, and there are many other instances जो मैं आपको show कर सकता हूँ. If history is to repeat, then what is most likely to happen is निफ्टी जो है दोस्तों, ये 16,600 वगैरह जो है ना, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, एंड वी शुड ट्रेड इन दिस रेंज, in this big range of, you can say, 16,500, 16,600, and 15,500, 15,400 sort of level. ये मैं आपको एक लिख देता हूँ यहाँ पे कि 16,600 से 15,400 पकड़ लेते हैं, या 15,500 राउंड अबाउट. ये जो 1,000, 1,100, 900 पॉइंट्स है, यहाँ पे जिस तरीके से पहले कंसोलिडेशंस वगैरह हुए हैं, उसके बाद एक रिजम्पशन हुआ है, तो आई थिंक अगर हिस्ट्री इज टू रिपीट, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है. ओके, so this is the reason why I am not very bearish nor very bullish on the market, because I think these fractals, they don't lie. 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस दे रिपीट द सेम पैटर्न एवरी नाउ एंड देन. इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. अगेन दीज वर द टाइम व्हेन निफ्टी यूज्ड टू बी जस्ट ऑफ 8,000 वैल्यू, सो द कैंडल्स विल लुक वेरी स्मॉल. आप अपने चार्ट पे इसे जो है लगा के आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. अगेन यहाँ पे इफ यू सी, दिस वाज द this was the last bear market, then it started the new bull market, and again it consolidated here, new high बनता है, अगेन एक करेक्शन होता है, और इसके अंदर कम से कम ये 7 हफ्ते ट्रेड करता है, और जब वापस रिक्लेम करता है तो नया बुल मार्केट रिज्यूम एंड ऑल टाइम हाइज वगैरह कम्स. ठीक है, नाउ इफ यू गो बैक अगेन फर्दर इन टाइम, आपको यही चीज दिखाई देगा. ठीक है, आपको यहाँ भी यही चीज दिखाई देगा, हर समय आपको सेम चीज दिखाई देगा. इसमें 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब निफ्टी ने 1 ईयर का बेयर मार्केट किया था, द प्रॉपर बेयर मार्केट, एंड वी मस्ट स्टडी दोज 2 केस स्टडीज ऑल्सो. तो मेरे सामने 2012 का एक बेयर मार्केट है और 2015 का एक बेयर मार्केट है. तो यहाँ पे क्या बिहेवियर था, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं. सो यू कैन सी in the 2012 bear market, first we got a big correction over here, and after again 5 to 6 weeks of consolidation, then we got a bounce. Here we got the first dip and it just bounced off, क्योंकि उसके नीचे नहीं क्लोज हुआ था. सेकेंड टाइम ये आता है, क्लोज होता है, कम से कम 5 हफ्ते वहीं पे ये कंसोलिडेट करता है, गोज अप लिटिल बिट, फेसेस द रेजिस्टेंस, एंड अगर ये दूसरी बार आता है तो देयर इज अ कैपिचुलेशन इन द स्टॉक मार्केट. यहाँ पे देखिए, गोज अप, कम्स डाउन, कोशिश हो रही है, रेजिस्टेंस है, सेकेंड टाइम आया, यानी एक सेकेंड टाइम अगर क्लोजिंग बेसिस पे आया तो देयर इज अ कैपिचुलेशन इन द स्टॉक मार्केट, एंड ओनली आफ्टर दैट these markets they bottom out and a new bull market starts. So this is a very interesting observation, and historically it has shown some same behavior even here also. Second time जब इसके नीचे आता है, then there is a capitulation in the stock market. This is your 2008. तो ये 3 bear market के examples भी हैं हमारे सामने, और कई सारे bull market के examples भी हैं. जब भी secular bull market है, it doesn't
close below this moving average, it will always sustain एंड ऑलवेज सारे करेक्शंस आपको उसके ऊपर तक ही सीमित होते हैं, ठीक है. सो नाउ दिस वाज वन ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लुकिंग एट द वे द ग्लोबल मार्केट्स हैव बिहेव्ड, what the global markets have done. The global markets, especially the US, they have broken their March lows in a very strong fashion, while we have not yet broken. तो यहाँ पे कोई जो चीज़ है ना वो एक इनकम्प्लीट है. नाउ यू मे रिजॉइस दैट इट्स अ डबल बॉटम, बट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि इस स्टोरी को बाय मत करना. ये जो है ना ये लेफ्ट लिबरल वालों की स्टोरी है कि ये बॉटम आउट हो चुका है, रैलीज होंगी, बाउंस होंगे, बट बॉटम नहीं हो चुका है. क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो ट्रिपल बॉटम है, जो लोग इसे ट्रिपल बॉटम बोल रहे हैं, तो भैया ट्रिपल बॉटम इसे नहीं कहते हैं, ये ट्रिपल बॉटम नहीं है और ये इवेंचुअली फ्यूचर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना, कैरिड अवे मत होना. और हम अब सीधे बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में, हमने कल क्या कहा था और हमारा अभी क्या पोजीशन है. सो yesterday वी डिस्कस द इंट्राडे चार्ट. आई टोल्ड यू दैट वी हैव मेड अ इनसाइड डे कैंडल एंड इनवेरिएबली व्हाट विल हैपन इज आइदर अ गैप डाउन और अ गैप अप. अगर गैप अप होगा तो बाय द गैप, एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की रैलीज को राइट कीजिए. देयर इज अ अनफिल्ड गैप, सो प्रॉब्ली इट विल टेक आउट दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट एंड देन फिल अप द गैप अगर कोई वीकनेस नहीं आता है तो ये सारे जो टारगेट्स बताए थे, ये सारे टारगेट्स हो गए. आज ग्रुप में कुछ बंदों ने लॉन्ग किया, कुछ बंदे साइड में बैठे थे, ठीक है. सो सबने जो है आज कुछ ना कुछ इसमें एंजॉय किया है एंड आई थिंक मैनी पीपल हु आर नॉट देयर इन द ग्रुप, दे हैव आल्सो बेनिफिटेड. इट वाज अ सिंपल एनालिसिस. नाउ सेम थिंग हैपेंड विद बैंक निफ्टी आल्सो. तो बैंक निफ्टी में भी यही चीज हमने कल डिस्कस किया था कि इनसाइड डे फॉर्मेशन है एंड इफ देयर इज अ गैप अप, गो विद द गैप and try to buy Bank Nifty. There is a huge gap which is unfilled and it will definitely try to fill some portion of the gap. Now having said that, आज हमने जाते जाते जो है निफ्टी को एक और बार जो है एक शॉर्ट कर दिया है. वाई वी हैव शॉर्टेड, उसका रीजन आप सामने अब आप समझ सकते हो कि क्यों शॉर्ट किया है. बिकॉज ऑन द वीकली चार्ट वी हैव अगेन हिट दैट वीकली मूविंग एवरेज एंड देर इज अ गैप, there is a gap, there is a resistance filled with resistances. There is a scope for another 100 and 200 points up move, but looking at this bottom, this entire move can be a small trap, can be a small bull trap. Okay, हो सकता है ये वाला शॉर्ट हमें जो है लॉस दे, बट हम अत्यंत सफल रहे हैं इस पूरे बेयर मार्केट में. सो कोई भी जो बंदा ट्रेंड फॉलो करता है उसका लास्ट का जो ट्रेड है वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि उसी को ट्रेंड फॉलोइंग कहते ही उसी को है, ठीक है. सो हियर वी हैव टेकन अ प्रीएम्प्टिव शॉट keeping in mind the effect of the 65 weekly moving average, also the effect that comes along with this gap area and the trend line resistances and all those things. Okay, so हमारा ये व्यू है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, like from 16,300 maybe 440 etc, but then again we should fall back, take out these lows, take out the retail emotional hope lows and flush all through this and then stage a गुड कम बैक. ये हमारा व्यू है, तो इसलिए हम जो है शॉर्ट करके गए हैं. स्टॉप लॉस और कैसे मैनेज करना है ये सब हम ग्रुप मेंबर्स को बता देंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि कल इंट्राडे हम क्या कर सकते हैं फ्रेश एज अ फ्रेश ट्रेडर. तो कल का दिन बड़ा ही सिंपल है. 16,200 आपका जो है मॉब लेवल है, सो दिस इज योर मेक और ब्रेक लेवल. मार्केट सस्टेनिंग अबाउट दिस इज बुलिश. इट कैन वेरी वेल गो टिल 16,375 ओवर देयर. A small army of Kabira is waiting to short this market and it can fall. ओके, सो कल के लेवल्स में लिख देता हूं. मॉब लेवल जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 16,200. आपका पहला टारगेट है 16,375 एंड सेकंड टारगेट है 16,440. नाउ कीप इन माइंड दिस एंटायर बेल्ट इज फिल्ड विद सेलर्स, सो बी अलर्ट. किसी भी समय जो है धोखा हो सकता है एंड मार्केट कैन फॉल बैक ऑल द वे टू नथिंग लेस देन 16,050. ये पहला आपका जो है डाउन साइड में टारगेट होगा 16,050 के आसपास, जो कि ये लेवल्स हैं, ठीक है. सेकंड अगर हम टारगेट कंसिडर करें तो आई थिंक दिस अनफिल्ड गैप ओवर हियर, दिस शुड बी द टारगेट व्हिच इज योर 15,850. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुमारोज सेशन. सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आई फील बैंक निफ्टी में जो है दोस्तों गैप अप होना चाहिए. नाउ यू विल से देन व्हाई डिड यू शॉर्टेड, तो ये हम
प्लानिंग वाला ट्रेड है, इसमें हम एवरेज भी करेंगे, ऐड भी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो बैंक निफ्टी कैन बैंक निफ्टी शुड एक्चुअली ओपन गैप अप, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ अभी निफ्टी पे अटैक किया. बैंक निफ्टी पे कल करेंगे. तो अगर गैप अप होता है तो ये दोनों टारगेट्स जो है मार्केट कर सकता है. यहाँ पे आप भी फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दिस सिनेरियो. डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना, बिना स्टॉप लॉस के गलती से भी नो ट्रेडिंग विदाउट एनी स्टॉप लॉस, दैट इज द फर्स्ट रूल. ओके, एंड देन दीज आर दी डाउन साइड टारगेट्स. अगर कल बाजार गैप डाउन करता है तो इसका मतलब है कि निफ्टी ने आज अपनी बुलिश ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ली है. बैंक निफ्टी इज येट टू डू. सो व्हाट विल हैपन इज निफ्टी शुड गो साइडवेज एक्सेट्रा, while bank nifty gets the booster dose and it goes up to 34,800, it also completes its target and then both of them start the downside journey together. ठीक है, सो ये दो कुछ सिनेरियोज हैं. वेरी क्विकली 2 मिनट में बैंक निफ्टी पे रिव्यू करते हैं और उसके बाद जो है हम स्टॉक क्वेरीज लेते हैं. सो बैंक निफ्टी जो है इस समय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ again it has come up and it has managed to close just at the previous December bottom over here and around a very critical level in March. तो ये वापस यहाँ पे आ चुका है. Now if you notice last time also it has staged some rally only to be sold off, then again there was a bounce again to be sold off, but can this time be different? तो आंसर है हाँ, ये डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी पे कोई भी शॉर्ट नहीं किया है, बिकॉज बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड यस डेफिनेटली इट कैन गो टिल 34,800. ये तो मैं बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, 100% स्ट्रॉन्ग है. नाउ लेट अस लुक एट द वीकली चार्ट. इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, द लास्ट वीक हाई दैट इटसेल्फ इज 34,000 अराउंड 750 एक्सेट्रा. तो अब आप ये कल्पना करिए कि कल अगर ये ऊपर जाता है इंट्राडे चार्ट, तो डेली चार्ट यहाँ पे आ जाएगा जो कि रेजिस्टेंस फेस करेगा अगेन, विच विल कोइंसाइड विद द वीकली चार्ट. ठीक है, सो यहाँ पे जो अनफिल्ड गैप है ये भी फिल हो जाएगा एंड द हायर टाइम फ्रेम्स विल अगेन कम इनटू एक्शन विच माइट अगेन ब्रिंग द सेलर्स बैक इनटू द गेम. और इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट नहीं किया है. हम इसका इंतजार जो है ना यहाँ कर रहे हैं 34,750 से लेके 850 के रेंज में, क्योंकि यहाँ पे अनफिल्ड गैप है, ये कंप्लीट हो जाएगा. हाइयर टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस पे आ जाएगा एंड देन ऑन द लोअर टाइम फ्रेम वंस वी स्टार्ट टू सी द वीकनेस कमिंग इन, हम इसको शॉर्ट करेंगे. ठीक है, सो ये पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी है, स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अब कल के दिन हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं. सी व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस लेवल दैट वी हैव सरपास्ड दिस, which was what, which was supply. Okay, and there is a entire gap here. So कल के लिए हमारा मॉब लेवल तो बड़ा विचित्र होगा, पर उससे कोई फायदा नहीं आपको होने वाला है. ठीक है, सो मॉब लेवल है 34,000, ये मॉब लेवल है. ठीक है, बट ना तो बैंक निफ्टी यहाँ खुलेगा, ना तो बैंक निफ्टी यहाँ खुलेगा. बैंक निफ्टी मोस्टली शुड ओपन आइदर लाइक फ्लैटिश, या तो फिर बैंक निफ्टी जो गैप अप खुलेगा. ओके, अब ट्रेड कहाँ आएगा? ट्रेड या तो इस एरिया में जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आए और कोई वीकनेस दिखाए तो यहाँ पे एक तो शॉर्ट ट्रेड आएगा जैसा अभी मैंने बताया, या फिर अगर बैंक निफ्टी पहले यहाँ पे आता है तो प्रॉबली एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ से बनेगा फॉर दिस. एंड इफ यू आर टेकिंग दिस 34,000 लॉन्ग हियर, you can keep this as a stop loss like 33,750 33,800. ये इतना छोटा सा stop loss हम ले सकते हैं for a move till 34,800 and then the Nifty and Bank Nifty both would have completed their synchronized objective on the long side और फिर उसके बाद selling resume होनी चाहिए. ठीक है, आंख बंद करके सेलिंग नहीं करना है, वीकनेस देख के करना है. ठीक है, सो मॉब लेवल है 34,000 34,750 800 टारगेट है. ऊपर में बेरिश जब होता है तो नीचे में पहला टारगेट है ये लेवल विच इज 33,300 एंड देन ऑल द डाउनसाइड लेवल्स आर ओपन. आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. मॉब लेवल इज 34,000, फर्स्ट टारगेट इज 34,750, probably 850, and on the downside you have 33,300 as the first downside target, followed by 32,800 on the lower side. ठीक है, so these are the levels. एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ. चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर. ठीक है, तो वी कैन टेक स्टॉक क्वेरीज. अगर कोई जेन्युइन स्टॉक क्वेरीज है, क्वालिटी स्टॉक क्वेरीज है तो आप पूछिए. रिपीट वाली स्टॉक क्वेरीज को थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहूँगा. लेट अस टेक सम क्वालिटी
स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता। वेदांता पे क्वेरी आई है। सो वेदांता में हम वेट कर रहे थे कि एक अच्छा करेक्शन आए। नाउ ओके, वन थिंग, आज मैक्सिमम स्टॉक्स ने जबरदस्त एक अपसाइड दी है, मार्केट ने काफ़ी स्टॉक्स ने जो है एक अच्छी बुलिश मूव दी है एंड पीपल हैव गॉन क्रेजी, क्योंकि लोग या तो एक अच्छे बॉटम का वेट कर रहे थे या तो लोग रिवर्सल का वेट कर रहे थे, और रिवर्सल आ चुका है पर लोग कंफ्यूज है कि बॉटम बना है, बाय करें कि ना बाय करें। ठीक है, नाउ सी ऑल दिस थिंग्स विल हैपन if you are not clear what do you want to see on the chart. ओके, क्योंकि प्राइस का काम है ऊपर नीचे, प्राइस का काम है फ्लक्चुएट करना। जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल पे लगे लाइट का काम है लाल हरा एंड ऑरेंज ये कलर शो करना, उस तरीके से प्राइस का काम है। बट इफ यू डोंट नो कि बॉस लाल पे मुझे रुकना है और ग्रीन पे मुझे चलना है, तो आप रैंडम काम करोगे और फिर एक्सीडेंट होगा। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन मार्केट। नाउ वेदांता, good counter, everything is good, but the stock price is trading below 200-day or 233 moving average in my case. So for this reason I would not like to buy this stock at this time. हम इसे वेट करेंगे, हम इसे समय देंगे कि ये अपने आप को प्रूव करे थोड़ा, और मुझे जब लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा है तभी मैं रिकमेंड करूंगा। तो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लॉन्ग हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को देखिए, और ऊपर में मेरे ख्याल से 340 एक रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस साबित होगा। ठीक है, सो दैट इज द अपडेट। रिलायंस की बात करते हैं। सो रिलायंस टुडे रैलीड सिंगल हैंडेडली, आई थिंक 4% की एक रैली हो चुकी है, वेरी वेरी शार्प रैली। So I think that is a good sign, because we need the initial impulse and then we wait for one more decline जहाँ पे हम buy करते हैं। So I think Reliance एक अच्छा, thankfully Reliance ने bounce किया है, because the way it was cracking down it looked as if the world is going to end. सो ये एक अच्छी चीज़ है, तो इसे हमें फोमो का शिकार नहीं होना है, हमें जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड वी विल बाय दिस स्टॉक समवेयर इन फ्यूचर। सो एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपने बाय नीचे के स्तर पे किया है तो यहाँ पे थोड़े बहुत एक टारगेट्स हैं, जैसे कि 2580 के आसपास, 2600, यहाँ पे थोड़ा सा बुकिंग आप कर सकते हो। ओके, सी आई हैव अ टेक्निक टू स्पॉट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स। जब वो चीज़ें हमारे पैरामीटर्स पे क्लिक होती हैं तभी जो है हम एडवाइस करते हैं। सो इट मे हैपन दैट आई एम नॉट गिविंग एनी लॉन्ग ट्रेड एंड ऑल द स्टॉक्स रैली, ये भी हो सकता है बॉस। ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन वी फॉलो द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेरी है बायोकॉन। सो बायोकॉन लास्ट टाइम 385 क्या था, यहाँ भी जो है हमने वॉर्न किया था और प्लानिंग ये किया था कि अगली स्लंप में जो है इसे बाय करेंगे। नाउ slump तो आया है, but the thing is it has slumped like too much and I don't like the uh, third test of this moving average. Now uh, at the same time मैं समझता हूँ कि फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव एक छोटा ट्रेड वर्थ है, तो एक लॉन्ग ट्रेड आप इसमें कर सकते हो। आप 320 पे बाय कर सकते हैं। वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 300 psychological level over here, and that's it. If it has to work, it will work. It will at least go till 350 etc, or probably retrace back all the way to like 366, या तो फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा। सो आई थिंक इट्स अ बाइनरी ट्रेड, आइदर स्टॉप लॉस और अ बिग टारगेट, नॉट अ बिग टारगेट बट अ डिसेंट टारगेट विद अ मॉडरेट एक्यूरेसी। तो मैं समझता हूँ इसे बस इस तरीके से ही हमें देखना चाहिए। वी शुडंट ट्रेड टू मच, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड देन लेट अस सी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, द वे बायोकॉन इज बिहेविंग, टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बॉस। या तो ये अगर चला इस बार तो ये एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म एक नया बुल मार्केट शुरू करेगा जहाँ पे 580 से 600 के टारगेट्स आएंगे इन फ्यूचर, मे बी मोर देन दैट, और वी आर लुकिंग फॉर अ पैथेटिक डिक्लाइन इन दी एंटायर फार्मा स्पेस। ठीक है, सो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील अगेन जो है एक सडन शार्प बाउंस दे चुका है। अभी कल हमने यही चीज़ पे डिस्कशन किया था कि या तो टाटा स्टील जो है ना सडन बाउंस करके सबको जो है कंफ्यूज कर देगा, फंसा देगा, ओके, फोमो क्रिएट कर देगा जिनको बाय करना था, और वो ऊपर ऊपर में, एंड देन इट विल डू अ बिग क्रैक ऑफ दिस बॉटम। ओके,
सो टाटा स्टील में देखो सडन मूव आया है, और मैं समझता हूँ कि किसी का पुराना लॉन्ग्स है या कोई आपका माल फंसा है तो आप इसको एग्जिट करिए। इसमें हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए या तो बहुत बढ़िया एक लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलेगा, या तो हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। टाटा स्टील इज नॉट गोइंग टू remain forever at 1200 level. It has already been at 1200 since almost 1 year। अगर आप देखें तो 11 मई को ये हाई लगा था 1245 का। 1 साल हो चुके हैं, स्टॉक वहीं का वहीं है। ओके, स्टॉक वहीं का वहीं है बॉस। तो स्टॉक जो है या तो 450 पे आने वाला है, इधर नियर 500 लेवल, और स्टॉक इज गोइंग ऑल द वे टिल 1800 1900 लेवल्स। ओके, सो वी शुडंट हरी मच। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें सब्र करना चाहिए। अगर आपको वाकई में इस मूव के लिए प्ले करना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा एक क्लियर ट्रेड का। ओके, क्योंकि या तो 1050 के नीचे ट्रेड है, या तो फिर एक 1380 1400 के ऊपर ट्रेड है। बीच में ना ये पूरा जो है मिक्सर ग्राइंडर वाला फेज है। Okay, so that's why I'm not very keen on Tata Steel from a big trade perspective at this moment। अगर आपने बाई किया है तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें, आप इसे 1250 के लेवल पे यहाँ कहीं जो एक बार बुक कर सकते हैं, देन लेटर ऑन वी विल सी व्हाट टू डू। ठीक है, HDFC Bank. HDFC Bank, I have told repeatedly, 1300 is a good support. You can keep 100 point as a stop loss. I'm not very keen, and 1300 से 1500 के रेंज में चलेगा। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कोई बहुत बड़ा ग्रेड नहीं है। हाँ, बाय करना है कर सकते हो। प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इट्स मेकिंग a falling wedge pattern over here, which is generally bullish। There is an unfilled gap at 1460, so probably it can go here. I am not very keen. I am not suggesting any long trade because it doesn't fit my criteria. But if somebody wants to like invest in cash segment, buy some shares of HDFC Bank, there's no harm in doing it. You can buy near 1300, keep 100 point stop loss, and 1500 should come. Either it can go little down and then bounce, or directly bounce. But yeah, I see a range of 1300 to 1500 on HDFC Bank. That's it। दोस्तों एक और मैं अपडेट दे देता हूं, जो लोग अभी जुड़े हैं, कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप इज कमिंग ऑन May 28th and 29th, एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस इट। प्रेस द ज्वाइन बटन और आप ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा पावर। सो टाटा पावर में अगेन जस्ट लाइक टाटा स्टील, टाटा पावर में भी वही चीज हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ coming at the 200 level, finishing the bottom, it has chosen to just bounce। so टाटा पावर में सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। आई थिंक ये एक गैप फिलिंग मूव है थोड़ा सा। आई थिंक थोड़ा सा लाइक 252 इट कैन गो, बट देर विल बी वन मोर डाउन मूव। ओके, सो इस स्टॉक से बच के रहना। क्यों बच के रहना मैं बता रहा हूँ। So this stock has already done a consolidation and a failed breakout over here। This was the first leg of the correction। All the sellers are sitting at this zone of 265, and the best part is all the retail traders, they are badly trapped in Tata Power। Okay, so even if it moves up, retail trader would see only their cost coming, and they will either choose to hold or probably they will exit, while the institutions, they are definitely going to hammer। तो आप सोच सकते हो कि इसमें हैमरिंग के चांसेस ही ज्यादा होंगे। ओके, सो दिस इज व्हाई बी केयरफुल। ओके, it's a great opportunity that you are getting some spike up in the stocks, so utilize it to clear off your bad inventory। I'm using the word bad inventory। सन फार्मा की बात करते हैं। Sun Pharma. We have reached 50 minutes of the live session, so only 10 minutes are remaining। So Sun Pharma, any up move, Sun Pharma is a total exit। Sun Pharma is exit। Okay, थोड़ा सा और अप मूव आपको मिल सकता है, मे बी 10-20 रुपीज, बट आई थिंक यू शुड एग्जिट। इसमें एक डीपर करेक्शन मैं देखना चाहता हूँ, तब एक अच्छा मूव आएगा। कैनरा बैंक इज बेरिश फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। एनी बाउंस इज जस्ट अ टेक्निकल बाउंस। कल मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैनरा बैंक को। Any bounce that come eventually will not cross 222,
So if you are stuck on some higher positions, try to exit. और यदि यहाँ पे आपने बाई किया है तो ये जो 190 का स्टॉप लॉस है आप लगा सकते हैं. मुझे ये स्टॉक 222 के ऊपर 220 के ऊपर कदापि नहीं दिख रहा है. ठीक है. आईटीसी, उसके लिए मुझे लग रहा है कैनरा बैंक के किसी ब्रांच को खोदना पड़ेगा. आईटीसी ने एक अच्छा एक जंप किया है और आईटीसी पे मैं बुलिश भी हूँ. जो आईटीसी को होल्ड कर रहे हैं, देयर इज अर्निंग्स दैट इज कमिंग, आई थिंक टुमारो या डे आफ्टर टुमारो है. सो आईटीसी पे बी केयरफुल, क्योंकि सारे अर्निंग्स के जो स्टॉक हैं पहले थोड़ा बुलिश होते हैं, बाद में दे आर बीइंग सोल्ड ऑफ. ओके. So that is why I am not positioned as of now on ITC, but I'm bullish. So I would like to see ITC, do two things. Number one, either we get a selling again, and then I would like to buy ITC somewhere near like 240, or maybe at 245, somewhere here. Okay, somewhere here in this zone. Or I would like to leave ITC for the time being, let it break out, and then buy on dips again. सो घूम फिर के ये ट्रेड तो मिल जाएगा. इट जस्ट दैट कि कहाँ लें. ठीक है. और रही बात कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लॉन्ग होंगे. इफ़ यू आर लॉन्ग, तो आप देख लीजिए, आपको स्टॉप लॉस 245 ही लगाना होगा. रिजल्ट है, सो बी केयरफुल. एनी साइड मूव कैन कम. सो दैट्स द अपडेट. अशोक ले लैंड पे क्वेरी है. नेक्स्ट क्वेरी इज ऑन अशोक ले लैंड. ओके, लेट मी टेक दिस स्टॉक. काफ़ी दिन हो गए इस स्टॉक को लिए. So Ashok Leyland is showing a good bounce back. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा bounce है. But there is a problem. The problem is at 132. 132 पे मेजर प्रॉब्लम है इस स्टॉक को. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि फिल्ड गैप है, बट दैट विल स्टिल असर्ट इट्स प्रेशर. मुझे लगता है 132 135 अधिक से अधिक ये स्टॉक जाएगा. बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ है यहाँ पे. Okay, even from a higher time frame perspective, if I see, the stock has to do lot of work to negate this 132. This is the weekly chart. आप देख सकते हैं 132 huge slump है, huge issue है 132 पे. ठीक है. सो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट है LTTS फॉर लॉन्ग टर्म. सी लॉन्ग टर्म वगैरह का ये मार्केट अभी नहीं है. आई थिंक हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही डिस्कस करते हैं. सो I recommend long term, but when the markets are suitable. So the stock is totally gone. Okay, there's no long term thing for this stock. It has already made its long term top. Now it's the long term bear market. So any rally that comes will be sold off. Apollo टायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर इस समय बनाया है. सो अपोलो टायर्स is breaking out, has come off this consolidation, so I think which is very nice. And we can expect 230. 230 का जो लेवल है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये जा सकता है. ठीक है. सो अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन में हैं तो आप ध्यान देना, 230 जा सकता है, बट प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करना. ओके, दीज आर नॉट योर very bullish kind of a move. These are just technical moves at the moment. Okay, so ये चीज है. Okay, let's take next stock, VST Tillers. VST. ओके, ठीक है. चलिए स्टॉक को लेते हैं. तो दिस स्टॉक इज इन अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड, एंड आई थिंक मैक्स if it goes, I think 2500 is the maximum. Okay, like 2569, 2600 is the maximum. Yeah, 2600 is the maximum. So this stock is in a complete downtrending move. So I think this stock will finally break the 2400 level on weekly closing basis and go all the way till 2000 rupees, where the final bottom will be made. So I'm not bullish on this stock. You should watch out for your entry price and try to exit on any decent rally that comes. Okay, there's a lot of supply in this stock. Huge supply here, boss. Big issue. Also, you can see the downtrending channel and all these things are very visible on this chart. Very visible on this chart. See, so 2600 is a very stiff resistance. I don't think it is going to cross that. मैं समझता हूँ ये स्टॉक हमें 2000 के लेवल पे मिलेगा sometime in future. नेक्स्ट स्टॉक है UPL. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
कमेंट भी आप कर सकते हो। यूपीएल देखो लास्ट टाइम भी यहाँ पे बताया था कि निकल जाना और एक करेक्शन हो गया, फिर हमने ये एक्सपेक्ट किया कि डाउन ट्रेंड अगर इंटैक्ट है तो ये और नीचे जाना चाहिए, बट द स्टॉक हैज बाउंस बैक जस्ट लाइक अदर स्टॉक। स्टिल देयर इज नो व्यू, if you are long I would suggest you should book out, because 850 is a major resistance area, nothing changes, एक बाउंस से स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, स्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है स्टॉक को। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डीएलएफ। नाउ डीएलएफ लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर आई वाज लाइक वेरी बेरिश, एंड इसे जो है बहुत ज़बरदस्त एक शॉर्ट ट्रेड भी हमने किया था, 400 के लेवल से इसे शॉर्ट ट्रेड किया था, एंड पूरी इमारत जो है पानी पानी हो गया था। सो राइट नाउ द स्टॉक कैन गिव व्हाट, द स्टॉक कैन गिव अ टेक्निकल पुल बैक, ठीक है। सो क्योंकि अच्छे लेवल पे था, 300 एक सपोर्ट है यहाँ पे, सो स्टॉक आई थिंक इट कैन गिव सम बाउंस 355 एक्सेट्रा, बट ये हमारा परमा बेयर काउंटर है, वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन सच स्टॉक्स। एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स। सबसे कमाल की बात है किसी ने अभी तक एलआईसी के बारे में पूछा नहीं है, ठीक है। सो ओके, एसबीआई कार्ड डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, अगर आप लॉन्ग हैं तो आप 675 को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक पूरी तरीके से बेरिश मूव में है, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो स्टॉक जो है आपको 850 860 की रैली दे सकता है। सो दैट्स व्हाई यूज दैट लास्ट स्टॉप लॉस of probably 675 should suffice. Okay, green panel industry, I think I had taken this stock last week or maybe 2 3 days back. Green panel industries, सो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो है इस समय ना सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है, ये कहीं नहीं है। सो दिस नो कमेंट फ्रॉम माय साइड। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इसमें वेट करने का, वही हम अभी भी करेंगे। यूनाइटेड ब्रीवरीज, नेक्स्ट क्वेरी है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज। दिस स्टॉक इज नाइस, दिस स्टॉक इज गुड, आई लाइक दिस स्टॉक, नॉट द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए दुविधा क्या है, यहाँ पे दुविधा ये है कि स्टॉक में कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, ठीक है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि यहाँ पे हम क्या एडवाइस करें। सो आई वुड लाइक टू रिजर्व माय कमेंट, कुछ नहीं है अभी मेरे हिसाब से। ओके, हालांकि स्टॉक मुझे पसंद है, द स्टॉक फ्रॉम अ मीडियम टर्म, आई लाइक द द मीडियम टर्म थिंग इन दिस स्टॉक, आई लाइक दिस फॉलिंग वेज। ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना कुछ मिसिंग है स्टॉक में, थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, ये एक बार कुछ ज़रा कंप्लीट हो जाए इसकी कहानी, आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक स्टॉक। सो बहरहाल सपोज अगर आप अभी होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग है, तो स्टॉप लॉस रखिए, लेट अस सी, अगर कुछ ऐसे ब्रेकआउट हो गया तो बहुत ही शानदार चीज़ होगा, ठीक है। बट मेरी तरफ से कुछ नहीं, आई वुड वेट। Pidilite Industries, Pidilite Industries, again that three little Indian pattern, ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाला पैटर्न जो है एक अच्छी बाउंस को यहाँ पे जनरेट कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक मैं समझता हूँ कि इट कैन बाउंस एंड गो टुवर्ड्स 2300 रुपीज़, ठीक है। सो इफ़ यू आर लॉन्ग इन दिस स्टॉक या कोई भी अगर पोजीशन भी नहीं है तो मे बी आप थोड़े डिप पे थोड़े शेयर्स बाय करो, बिकॉज जनरली this type of chart structure they produce some bounce, so I think you can buy some shares with 60-40 probability, and then this is the supply, maybe it can go till 2300, that's it। कुछ great ऐसा bull market वाला वो नहीं है, just a trader's bet, with 2000 as a stop loss you can bet for 2300 rupees, ठीक है। So that's the update, on Pidilite। ओके, चलिए वाइंड अप करने का समय आ चुका है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, आई थिंक आई हैव टेकन 25 स्टॉक क्वेरीज। केपीआईटी देखो अच्छे लेवल पे आने वाला है, बट स्टॉक में दम नहीं है, ठीक है। सो लेवल से कुछ नहीं होता, चार्ट स्ट्रक्चर से होता है। सो 450 इज द लेवल दैट आई एम वाचिंग, विल वॉच फॉर फ्यू डेज। औरो फार्मा, इस पे काफ़ी क्वेरी थी आज। औरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, लेट अस सी। तो औरोबिंदो फार्मा में हिस्टोरिकली मेरा क्या व्यू रहा है सबको पता है कि हम इस लाइन का वेट कर रहे थे। ये प्रिडिक्शन मैंने कई हफ्ते पहले आपको सामने किया था कि ये स्टॉक जो है ये एक्सपेंडिंग वेज पैटर्न में है। मुझे याद है मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सपेंडिंग वेज में है, यहाँ पे आना निश्चित है। भाव भी मैंने आपको बताया था कि 550 का भाव रहेगा, ठीक है। सो एवरी टाइम आई वांट,
मैंने अच्छे से ड्रॉ करके सबको एक्सप्लेन किया था, बाकी आपकी मर्जी कि आपने क्या किया है इस स्टॉक में। सो बहुत ही बेरिश काउंटर है दोस्त, बच के रहना। जब तक कोई रिवर्सल ना हो तब तक इसे लॉन्ग नहीं करना है। ओके, सो be careful in the pharma sector, na? Because if something is going in the pharma again, I'm telling you that guy Bill Gates na, he's not sitting idle, वो कुछ ना कुछ कीड़े कांडी कर रहा है। And these guys will, you may never trust these guys, ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। So either pharma will suddenly start to take a U-turn because all these pharma stocks are coming at some major long-term support, or probably nothing will happen and they will be uh, going back to their historical lows. मनीष लाल का देखो क्या मस्त क्वेरी है, ठीक है, कि मैकडॉवेल और यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस विच इज बेटर। ठीक है, मजा आ गया, शानदार। लगता है दोनों ही एक एक पैक लगा के क्वेरी पूछा है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने भी एक जंप की है। हालांकि मैं तो टाटा मोटर्स पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि और इसमें हैमरिंग होगी, 350-40 के लेवल्स आएंगे, बट हो सकता है आ जाए। सो अगर अभी तेजी में हो तो पुरानी इन्वेंट्रीज को लिक्विडेट करो। 436 वगैरह देखो दिख सकता है, दैट इज द 65 डे मूविंग एवरेज। कंसिस्टेंटली इसने रेजिस्टेंस लिया है वहां पे। सो प्रॉब्ली आफ्टर टेस्टिंग दिस, कल मैंने बताया था कि ये 439 तक भी जा सकता है क्योंकि ये पूरा सप्लाई जोन है। सो प्रॉब्ली आफ्टर गोइंग दिस वन मोर राउंड ऑफ वैक can come here. Okay, so be careful. It's a very big supply area now. बहुत ही ह्यूज सप्लाई हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज सप्लाई हो चुका है। सो बच के रहना, ठीक है, और मैकडॉवल पी के ट्रेड मत करना। चलो आखिरी क्वेरी लेते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, अरे क्या नज़ारा में फंस गए यार आप। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, आप ये जो हमारे भाई हैं हमेशा ऐसे ही काउंटर पकड़ते हैं ना जो अत्यंत परमावेयर हो, मतलब कमाल है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस पे पूरे इंडिया की नज़र है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर आफ्टर बजाज फाइनेंस। ओके, सो सी बजाज फाइनेंस में अभी मुझे तो कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, पर बाउंस कंटिन्यू हो सकता है, 6200 तक बाउंस हो सकता है। ठीक है, सी लेट मी टेल यू समथिंग। इस चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक इस चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जब भी देखो वी शेप ऐसी कोई बाउंस होती है ना, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ बेयर मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट एक क्रैश करता है और बिना कोई बॉटम बनाए मार्केट भाग जाता है। ठीक है, अब इस टाइप के मूवमेंट में ना सबसे ज्यादा आनंद जो है ना वो रिटेल लोगों को आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे वांट एक्शन, और मार्केट ने एक्शन कर दिया दोनों बाजू में। सो दे बिकम वेरी एक्साइटेड। दैट इज व्हाई all such moves where the bottom formation process could not happen and then there was a big rally or a sell off, they are invariably part of a correction, and that is why next time they drop again badly। ठीक है, जो जेन्युइन बॉटम फॉर्मेशन होते हैं जहां से एक सेकुलर ट्रेंड निकलता है वो आप देखोगे कि हमेशा कुछ एक प्रोसेस करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फैंटेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस है? कंसोलिडेशन, फॉल्स ब्रेकडाउन विद अ गैप, अगले ही दिन गैप अप के द्वारा आई एंड रिवर्सल करके इसे रिवर्स कर दिया गया। ओके, यहाँ भी आप देखो जो भी एक अच्छे होते हैं, डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, बुलिश एनगल्फिंग है, और तब एक अच्छी मूव आई है। सो ये जो एक बात मैं कह रहा हूँ इस पे ध्यान देना चाहिए। ओके, टेक्निकल अगर कोई ट्रेड ले लेते हो, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, नाइस प्लेस टू टेक सम टेक्निकल ट्रेड, तो उसे टेक्निकल ही रखना चाहिए, उसे बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, सो इफ यू आर लॉन्ग हियर, इट इज ब्रेकिंग कमिंग आउट ऑफ 3 डेज रेंज, तो प्रीवियस जो सप्लाई है ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो लगभग 6200 आप मान के चलिए। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में अगर ये आता है और कुछ एक बॉटमिंग प्रोसेस करता है तो फिर हम डेफिनेटली बाय करेंगे, बिकॉज दैट वुड कंफर्म दैट अ बिग करेक्शन इज ओवर एंड प्रॉब्ली वी आर स्टार्टिंग सम बिगर मूव। ओके, सो ये एक एजुकेशनल एंगल से ये चीज़ मैं आपको आपको मैंने सोचा शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो जो भी अच्छी बॉटम्स होती हैं, they are not formed in one day, they are a process, they are an event, look at these। okay, अब इसको आप ये करेक्शन वाले साइकिल में आप कंपेयर करो, you will always see a difference। okay,
आखिरी सवाल आज का, क्योंकि हमने अगेन वी हैव क्रॉस्ड द व्हाट वी हैव क्रॉस्ड द टाइम लिमिट ऑफ 1 आवर एंड यूट्यूब जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी क्वेरी लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, State Bank of India, let's take. So today, I think State Bank of India also jumped just like everything else. Now, क्योंकि State Bank of India मेरे रडार पे है for a bullish move, I like this move in the State Bank of India. ठीक है, सो ये एक अच्छी मूव है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट है, वोट है एसबीआई को। सो इन कमिंग डेज लेट अस सी, हमें इसमें जो है एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर अभी आप लॉन्ग हैं तो इमीडिएटली जो है आपको अराउंड 477 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। डेफिनेटली 477 480 ये रेजिस्टेंस जोन है, सो उसका जो है ध्यान रखिए। और हमारी स्टूडेंट का क्वेरी है, सो हम भारती एयरटेल को भी ले लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। सो भारती एयरटेल लास्ट टाइम 755 से मैंने 685 का एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड किया था, आई रिमेंबर फ्रॉम दिस, एंड व्हाट अ मूव, ग्रेट मूव। सो राइट नाउ एक बुलिश technical bounce hai. I think it will face resistance at 722 and that is where you should exit. I think the stock can again go towards lower levels. ठीक है, सो ये एक अच्छा स्टॉक है टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए, बोथ ऑन द लॉन्ग एंड ऑन द शॉर्ट साइड। भारतीय एयरटेल इज अ फैंटास्टिक स्टॉक फॉर एफएनओ ट्रेडिंग, प्रोवाइडेड आपके चार्ट्स अगर तैयार हैं स्क्रीन पे तो आप इसे बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आई रियली लाइक द भारती एयरटेल chart for FNO trading. Okay, so my targets are still like 630. Okay, last time मैंने यहाँ से short किया था for 685. That is a huge move of 70 points. That is done. हम wait करेंगे for another resistance level to come. Probably then we'll short. So 720 to 725. That is your resistance zone. ठीक है, चलिए दोस्तों, I think it's very late and I have taken again lot of time. YouTube appreciate नहीं करता है क्योंकि वी डोंट अर्न एनी मनी फॉर यूट्यूब, इट्स ऑल फ्री। तो आप लोग जो है सपोर्ट वगैरह कीजिए, और जिन लोगों को ट्रेनिंग में जुड़ना है, एसोसिएट होना है, विदाउट डिले आप जुड़ जाइए, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।